और वो हमें हेल्प करता है, वो हमारी मदद करता है। And the presence of God comes immediately as we surrender to Him to help us. आज का वचन ये नहीं है, आज का वचन कुछ और है। Today's scripture is not that. There's something else. वचन स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। Before going into the sermon, I want to share a story with you. एक बार एक चर्च में बहुत से लोग जा रहे थे Once there was many people were going into a church. और एक औरत जो बड़ी गरीब लग रही थी, बूढ़ी थी, वो भी उसने भी जाने की कोशिश की चर्च के अंदर। So an elderly lady who was of old age and very poor was also trying to go into the same church. पर लोगों ने उसको अंदर जाने नहीं दिया, कहते नहीं ये तेरे लिए नहीं है, तू बाहर जा। But people didn't allow her to go inside there, saying that this is not the place for you. तो वो वहाँ पे दूर बेचारी खड़ी हो गई पेड़ के नीचे और देखने लगी जब लोग अंदर जा रहे थे। She stood under a tree and she was watching what's happening there. तो वहाँ पर एक इंसान आया, उसने उसको पूछा तू यहाँ पे क्यों खड़ी है? One person came there and asked, "Why are you standing here?" तो उसने कहा मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया She said they didn't allow me to get inside the क्योंकि church मेरे पास या अच्छे कपड़े नहीं हैं because I don't have good clothes या मेरी हालत अच्छी नहीं है and I'm not in a good condition. या मैं स्मेल कर रही हूँ, Maybe I'm smelling. इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने दिया। That's why they didn't allow me to go inside. पर उसने वापस आप कौन है? She asked the person back, "Who are you?" उसने बोला कि मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया इन्होंने। He said, "I am also not allowed to go और उसने inside." फिर पूछा आप है कौन? She asked, "Who are you?" कहते मैं यीशु हूँ। He said, "I am Jesus." वो सारे बाहर का तो उनका बहुत अच्छा था, He was looking very nice from जो अंदर लोग जा रहे थे वो बाहर से तो बहुत अच्छे दिख रहे the थे, people who were entering the church. They were looking very पर good उनके from दिल में outside, यीशु नहीं था। but they didn't have Jesus in their heart. पर मेरी ये खुशी है कि हमारे सबके दिल में यीशु है। हालेलुया। I'm so happy that I'm glad that we all have Jesus in our heart. इसलिए आराधना हमारे अंदर से निकलती है। That's why the worship is coming out of our heart. आज का वचन जो है आपके जीवनों में एक बड़ा आशीष का कारण बने। Today's scripture is going to be a blessed scripture in your life. आज का जो वचन है आपको एक नया रास्ता दिखाए प्रभु यीशु मसीह में चलने का। Today's scripture is going to open a new path for you in Jesus' name. आज का वचन जो है आपको मदद करे कि आप नेक्स्ट लेवल पे विश्वास के कैसे पहुंच सकते हैं। This today's sermon is going to help you to step into the next level of faith. आमीन। Amen. आप में से कई बहुतों ने ये वर्ड सुना होगा विश्वास। Many people have heard this word faith. विश्वास जो है हर धर्म में यूज किया जाता है। Faith is a Word word जो that is विश्वास। used in every religion. विश्वास हर एक, ये जो वर्ड है हर एक धर्म में बहुत बार यूज होता है। This is a word that is commonly used in every religion, everywhere. जो मसीह में विश्वास भी नहीं करते वो भी लोग कहते हैं कि विश्वास रखो भगवान सब ठीक करेगा। People who are not in the Lord, they also say that keep faith, everything is going to be fine. पर विश्वास है क्या? What is faith? हर कोई बोलता है विश्वास करो गॉड विल, परमेश्वर सब ठीक कर देगा। Everyone says that keep faith, God is going to set right everything. आप में से सबको ये एक्सपीरियंस होगा Everyone would have experienced जब this. हम एक बुरे टाइम में चल रहे होते हैं, When we are going, especially when we are going through bad times. हमारे फ्रेंड्स फैमिलीज हम लोग आके कहते हैं विश्वास रख भाई सब कुछ ठीक हो जाए। All our friends and family would say that to keep faith in God. पर वो इस चीज को नहीं जानते कि कैसी सिचुएशन में हम निकल रहे हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है विश्वास रखना। But people don't understand that how difficult it is to keep with faith, especially when you are going through difficult situations. क्योंकि बहुत आसान है बोलना, It is very easy to say. बहुत आसान है बोलना जब हम परमेश्वर लोगों को बोलते हैं कि विश्वास रखो। It's very easy to say to people that keep faith in God, especially when you're going through. पर बहुत मुश्किल है उसको निभाना जब हम दुख में होते हैं या किसी मुसीबत में हो। It's very difficult to keep up with faith, especially when you are going through tough situations. आज हम सीखेंगे मसीही होने के कारण, Today we are going to learn that being in the Lord, विश्वास के बारे में हमें पता है, we know about faith. उसका मतलब भी पता है, जो अनसीन चीज होती है जो हमने नहीं देखी, जब हमें पता है कि वो चीजें हैं उसको विश्वास कहते हैं। We are aware that faith means hoping in the unseen things. जैसे हमें पता है कि एंजल्स हैं, As we know that there are angels. कैसे पता है? How do we know? क्योंकि बाइबल कहती है। Because Bible says so. क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। Bible says so because it's the Lord's word. परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। And the Lord's word never और हमें lies. पता है एंजल्स हैं, And we know that we have वो angels. विश्वास है। That is faith. पर हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं और How do we grow in faith? आइए हम एक वचन देखेंगे प्रभु बाइबल में से, लूका की इंजील उसका 17 अध्याय 5 आयत। Book of Luke, chapter 19 and 17. chapter 17 and वर्स 5। verse 5. उसमें लिखा है, प्रेरितों ने कहा, प्रेरित मतलब चेले जो थे, प्रेरितों ने उससे विनती की, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। The scripture says that the apostles said to the Lord, increase our faith. अपोस्टल
जो चेले थे, उसने कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ। The apostles said that, Lord, increase our faith. कभी कभी सुन के मैंने जब ये वर्सेस पढ़ी है बहुत बार, मुझे सुन के बड़ा अजीब लगता है कई बार कि ये तो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। It's surprising for me, but even though I read it many times, to see that the apostles are with the Lord, but they're still asking to increase their faith. पर दूसरी साइड हमें देखने की जरूरत है, वो इंसान थे। Other side of the story is they are As human. जो हम इंसान हैं, हम वीक हैं अपनी स्पिरिट में, दिल में, दिमाग में। हम जो इंसान हैं, हम वीक हैं अपनी स्पिरिट में, दिल में, दिमाग में। Since we are humans, we are weak in our mind, spirit and soul. इसलिए चेलों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारी मदद कीजिए कि हम कैसे अपने विश्वास में बढ़ें। That's why the disciples asked Jesus that, help us how to grow in our faith. ये एक ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर हमेशा इस प्रार्थना को उत्तर देता है। This is a prayer that God will always answer. आपकी हीलिंग में डिले हो सकता है, There may be a delay in your healing. ब्लेसिंग में डिले हो सकता There may है, be a delay in your blessing. पर इस प्रार्थना का जो आंसर है परमेश्वर इमीडिएटली देता है। जब आप उसको पूछते हैं, पूरे अपने आप को झुकाकर उसको बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाओ। But this is one prayer when you surrender to the Lord and ask Him to increase your faith, He would instantly answer. क्योंकि ये प्रार्थना जो है ये परमेश्वर के दिल को टच करती है। Because this is a prayer that touches the heart of God. जब हम उसको मांगते नहीं, प्रभु मुझे ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे, जब हम ये चीजें नहीं कहते, Even when we don't ask Him for anything, क्योंकि ये उसका नेचर है ब्लेस करना अपने बच्चों को। it's the nature of God to bless His children. पर जब हम उसको कहते हैं, परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं विश्वास में तेरे संग बढ़ सकूं, But when you ask God that, Lord, increase my faith so that I will grow in my relationship with you. फिर वो आता है और हमारी मदद करता है विश्वास में बढ़ने के लिए। And then the Lord interferes and helps us to progress in our faith. क्यों हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है? Why do we need to grow in our faith? क्योंकि ये हमारी मदद करेगा मसीही जीवन में। Because that will help us in our spiritual life. जब हम देखते हैं Hebrew 11:6, Let's look into Hebrew 11:6. उसमें लिखा है कि विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। It says that it's impossible to please God without faith. विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। Without faith, you cannot please God. चाहे आप पूरी बाइबल पढ़ के उसको पुराना कर दें, आप विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। You might read Bible many times, but if you don't have faith, you will not please God. इसलिए आप चाहोगे कि आपका जो विश्वास है हमेशा परमेश्वर पर बना रहे और बढ़ता रहे। That's the reason you always need to fix your faith on God and you make sure it grows in faith. You grow in faith. कई बार हम अपने दोस्तों को भी कहते हैं, मैं यार तेरे पे भरोसा करता हूँ, मुझे पता है तू कर देगा। Many times we tell our friends that I trust you and I know that you will help me. उसी तरीके से आपको परमेश्वर को कहने की जरूरत है। The same way you need to say that to Lord. परमेश्वर मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, मुझे पता है तू कर देगा। But God, you have to say to God that, God, I know I trust you and I know that you will deliver. पर उसकी कंडीशन ये होती कि इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं है। The only condition is you should not run here and there. परमेश्वर की हजूरी में पहले आए और उससे कहें जो आपके दिल की इच्छा है। Come to the presence of God as the first thing and reveal your desires to God. क्योंकि विश्वास के बिना तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। Without faith, God is not pleased. जो भी कुछ परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, Whatever the Lord wants to do in your life, आपके और मेरे जीवन के लिए बड़ा बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। it's very precious for both our lives. कई बार हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर के जो प्लान्स हैं हमारे जीवनों के लिए, हम खुद अपने हाथों से खो देते हैं। Many times we destroy the plans of God in our lives with our own hands. क्योंकि उसका रीजन है, एक ही रीजन है उसका, डामाडोल, इधर भटकना उधर भटकना, इसको पूछना उसको पूछना। The only reason for that destruction is not sticking to one place. क्योंकि हम यीशु के पास पहले नहीं आते। That because we don't go to the Lord in the first place. इसलिए कई चीजें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी हैं वो हमें नहीं मिलती। That's why many times what God has ordained for our lives, we don't get it. बाइबल में कहती है एक बंदा जो अंधा था, बाइबल में यीशु मसीह के पास आया। Bible says there was a blind man who came to Jesus. जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को छुआ तो उसने क्या कहा? When the Lord touched his eyes, what did he say? तेरे विश्वास ने तुझे, Your faith has healed you. उसने बाइबल पढ़ी थी कभी? हमें पता है? उसने कोई पता नहीं हमें कुछ भी, क्या हिस्ट्री थी इसकी। It's not. We don't know that the blind man has ever read Bible. क्या वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था? Was he a prayerful man? क्या वो चर्च जाने वाला व्यक्ति था? Was he a church-going person? पर उसका विश्वास किस पे था? But his faith was on whom? यीशु मसीह पे।
It was on Jesus. उसने सुना था कि हाँ यीशु मसीह जब हाथ रखता है तो लोग चंगे हो जाते हैं। He heard that when Jesus lays his hand on people, people get healed. उसने सुना था जब यीशु मसीह प्रार्थना करता है तो मुर्दे बाहर आ जाते हैं कब्रों में से। He heard that when Jesus goes visits the graveyards, the उसने dead सुना था raises. जब वो प्रार्थना करता है गूंगे बोलने लगते हैं। When he touches the people who can't speak, mute people, they start speaking. उन चीजों ने उसका फेथ बिल्ड अप किया That built his faith. और फिर उसने कहा कि परमेश्वर मेरे पे दया कर, He said, Jesus, show mercy on me. मेरे पे दया कर। Show mercy on और प्रभु me. यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। And हालेलुया। Jesus said, your faith has healed you. Amen. मत्ती की इंजील उसका 19:26 1926 जब हम देखते Matthew हैं 19:26. उसमें कहा कि यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. मनुष्य से नहीं हो सकता पर परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता With है। man it is impossible, but with God all things are possible. मैंने पहले भी कहा कई बार हम परमेश्वर को ना बॉक्स में रखते हैं, Many times I said this, that we put God in a box. इसलिए हम इधर उधर भटकने की कोशिश करते हैं। हम उसको बॉक्स में नहीं, ये तो मैं उससे पूछूंगा, इससे पूछूंगा, इसको पूछूंगी, इसको पूछूंगी। That's why we waver a lot, because we don't ask God first, but and we put him in a box. हमें प्रार्थना में जाने की जरूरत है और उससे कहने की जरूरत है क्या हमें चाहिए। We have to remain in prayer, we have to ask God, and we have to know from God. एक आपके साथ टेस्टिमनी शेयर करूंगा। I will share a testimony with you. ऑस्ट्रेलिया आने से पहले Before coming to Australia, 2013 में जब हम पता लगा कि जब हमने डिसाइड किया कि हम ऑस्ट्रेलिया In आएंगे, two- अप्लाई करेंगे, in 2013, when we decided that we'll come to Australia and we'll start applying, और हमने बहुत से दोस्तों से शेयर किया इस बात को we shared this with many people. और बोला कि हम पीआर पे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। We will be going to Australia on PR. We are planning, हम प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए पीआर। We are planning to apply for PR to Australia. सब लोगों ने ये पॉसिबल ही नहीं है, Many people said that it's not ऐसा possible. हो ही नहीं सकता। It's not going to work out. तुम हर साल ये बोलते हो, Every year you say this. हर क्रिसमस तुम यहाँ पे होते हो, Every Christmas you are ऐसा here. कभी नहीं हो सकता। This is not going to work out. पर हमें क्या था, परमेश्वर पर भरोसा था। We kept faith in Lord. क्या किया हमने? What did we do? हमने उसकी तरफ काम करना शुरू किया, We started working towards प्रार्थना it. करनी शुरू की, We started praying towards पेपर it. वर्क इकट्ठे करना शुरू किए, We started doing the उनको paperwork. अटेस्ट करवाना शुरू किया। We started notary. और 2015 8 दिसंबर को हमारी पीआर आ गई। 2016. 2015 2015 December we received a PR. आमेन। Amen. जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, When you put your faith in the Lord, वो आपकी सहायता खुद आकर करता है। He himself will come and वो help you. लोगों को लेके आता है आपके जीवनों में आपकी सहायता करने के लिए। He will bring people into your life to help you. आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं You पड़ेगी, don't have to run anywhere for help, क्योंकि वो चाहता है कि आप उससे पूछें, उससे मांगे, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। because he wants us to go to him and ask him for help, because he is a giving God. जब हम कोलोसियंस 2:7 पढ़ते हैं, Let's look to Colossians chapter 2. उसमें लिखा है जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। Colossians 2. कोलोसियंस 2:7 कोई भी पढ़ सकता है। So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. इसमें दो चीजों को आप टिक मार कर सकते हैं। पहला है विश्वास, दूसरा है धन्यवाद। You have to tick mark two things in the scripture. One is आपको faith, धन्य- another is thankfulness. आपको धन्यवाद करते रहना है परमेश्वर। You have to be thankful to God all the time. आपको विश्वास रखना है उसके ऊपर हर कंडीशन में। You have to put your faith in God at all times, in all conditions. ये मेरी इच्छा है कि हमारा सबका विश्वास प्रभु पर ऐसा हो जैसा हम एक चट्टान पे रखते हैं। We have to. This is my desire, that we put our faith in the Lord as we put in माउंटेन, the mountain. चट्टान पे चढ़ने से पहले क्या कोई सोचता है मैं पैर रखूंगा तो गिर जाएगी? Does anyone think that when I start stepping onto a mountain, that कोई नहीं सोचता। I'll fall down?
हम पैर नहीं रखते हैं, भागना शुरू करते हैं। No one thinks that once you start climbing the mountain, you start running over towards stuff. क्योंकि हमें भरोसा होता है चट्टान कभी हम फेंकेंगे नहीं वापस, Because we trust that the mountain would never throw us out. चट्टान कभी गिरेगी नहीं। The mountain would never fall. वैसा भरोसा आपको प्रभु पे रखने की जरूरत है। You have to put such faith in the उसको Lord. आपको चट्टान से भी बड़ा जो परमेश्वर है The God is bigger than a mountain. उसको छोटा ना समझें, Don't think small about God. उसके बारे में बड़ा सोचें। वो एक बड़ा परमेश्वर, हमारी सोच से परे, Think big about God. He is beyond our imagination. हमारी सोच से भी परे, He is beyond our thoughts. क्योंकि परमेश्वर जो है हमें प्यार करता है, वो चाहता है कि हम विश्वास में दृढ़ होते रहें, बने रहें। Because God is a loving God and He wants us to be firm in faith in Him. वो डामाडोल वाला विश्वास नहीं चाहता कि इधर भी चले गए, इधर भी कूद लिए, उधर भी कूद लिए, उसको भी पूछ लिया, इसको भी पूछ लिया। He is not a wavering God. He is a still God. वो चाहता है कि हमारा विश्वास उस पे बना रहे, दृढ़ तरीके से, एक ही तरीके से। All He wants us to be firm in our faith in Him. कोई भी तूफान जब आपके जीवनों में आएंगे, कोई भी परेशानी जब आपके जीवनों में आएगी, When you encounter certain circumstances or storms in your life, तो आप डामाडोल नहीं होंगे, you will not waver. आप डामाडोल नहीं होंगे, You will not waver. क्योंकि आपको पता होगा कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। Because you know that God is standing with you. हमें किसी और पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, पर परमेश्वर पे विश्वास करने की जरूरत है, We don't have to trust anyone, but we have to just trust God. क्योंकि परमेश्वर हमारा भरोसा बढ़ाएगा। आमीन। Amen. Because the Lord is going to increase our faith. खुदा आपका विश्वास बढ़ाता है जब आप उसके वचन को जानते हैं, God increases your faith when you start learning from His word. जब आपको वर्सेस के बारे में पता होता है। When you start learning the verses, understanding the verses, God increases your faith. जब एक रिसर्च हुई कि 70% ऑफ क्रिश्चियंस जो हैं मार खाते हैं जब उनको बाइबल नहीं आती। Research shows that 70% of the Christians, they are affected when they don't know, because they don't know the scriptures. जो यूएस में मोस्ट रिच पीपल हैं वो बाइबल पढ़ते हैं, The most rich people in US, they read Bible. क्योंकि उनको पता है कि बाइबल में ऐसी चीजें लिखी हैं, ज्ञान की बातें लिखी गई हैं जो उनको बढ़ाती हैं। Because they know that the words of wisdom are recorded in the Bible and it increases their understanding. क्योंकि उनको पता है कि हर एक ज्ञान की बात इस बुक में लिखी हुई है। Because every word of wisdom is recorded in this book alone. क्योंकि बहुत सारी किताबें मिलकर ये एक किताब बनी है। Because this is a book of many books. लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं खुदा के बारे में इस किताब में, Because people have shared their experiences with God in this book. क्योंकि वो जानते हैं ज्ञान की भाषा ये किताब बोलती है। Because they know that the language used is the language of wisdom in this book. उनको पता है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उन्होंने उनकी जो स्टोरी है, जीवित कहानी है, इस किताब में लिखी हुई है। Because हालेलुया। this is the only book, the life of Jesus is recorded in this book. जब आपको वर्सेस के बारे में पता होगा, When you learn the verses, तो आपका शरीर जो है मजबूत होता है। your body will become strong. उसी तरीके से जब आप खाना खाते हैं, उसी तरीके से जब आप खाना खाते When हैं, you eat food, आपका शरीर मजबूत बनता है। your body becomes strong. उसी तरीके से जब आप वचन पढ़ते हैं, When you read, same way when you read the ये scriptures, वचन आपकी आत्मा को मजबूत करता है। these scriptures strengthen your soul. रोमन्स 10:17 में लिखा है, Romans 10:17 says, इसलिए विश्वास सुनने से होता है और सुनने से मसीह का वचन सुनने से आता है। the scripture says that the faith comes from hearing the word of God. विश्वास जो है सुनने से आता है। The faith comes from hearing. विश्वास कैसे आता है? How does the faith come? किस चीज से आता है? सुनने से और बाइबल पढ़ने से आता है। हालेलुया। Hallelujah. जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं और उसको सुन भी रहे हैं। When we read Bible, we are not only reading but we are also listening. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. एक विलेज में एक लेडी रहती थी। One village has a lady. उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां थी। She had many troubles in her life. पति ने उसको छोड़ दिया था, Husband left her. परिवार ने मुंह मोड़ लिया था। The family deserted her. वो पहाड़ों पे जाके बैठ जाती और आकाश को देखती रहती She used to go into the forest and look at the sky. और कहती कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। And she used to say, God, you are not listening to my prayer. एक पास के गांव में कई लोग आराधना प्रार्थना कर रहे थे In the nearby village, the people were praying and worshipping. और वो भी जाकर वहां पे बैठ गई। And she also went and sat there. उसने देखा कि बाइबल में से पास्टर साहब कुछ बाइबल में से पढ़ रहे थे
She saw that the pastor was reading something from the Bible. यही वर्ष पढ़ रहे थे कि विश्वास जो है सुनने से आता है, And he was reading the same scripture that the faith comes from और hearing. जो सुनना है मसीह के वचन के द्वारा होता है। And hearing the word of God. वो लेडी सोचने लगी The lady started thinking. और उसने कहा कि मैं तो विश्वास करती हूँ प्रभु पे, She thought that I trust in the Lord. शायद मैं जब ज्यादा विश्वास करूंगी तो मेरी भी उम्मीद बढ़ेगी, जो चीजें मेरे शरीर में नहीं या मेरे जीवन में नहीं है वो पूरी होने में। So maybe if I start listening more, that my faith will increase and the things that I lacked would start, start getting it. अगले कुछ हफ्ते तक वो चर्च में जाती रही और प्रार्थना करती रही और विश्वास से वचन को सुनती रही। For next 1 week, she was going to church, listening to the scripture and praying more. और उसने देखा कि उसके जीवन में कई हालात बदलना शुरू हो गए। And she started noticing that her situations have started changing. उसने देखा कि उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो गया, And there's some miracle that happened in her life. क्योंकि वो चर्च में जाना जब उसने शुरू किया, Because when she started going to church, उसने एक स्टेप लिया परमेश्वर की तरफ विश्वास का, and she started taking a step towards Lord और by उसने faith. वचन को सुना And she heard the word, और उसने उसके ऊपर बिलीव किया, ट्रस्ट किया, and she believed the word, और परमेश्वर ने अपना काम करना शुरू किया। and हालेलुया। God has started doing the जब work. आप चर्च में आते हैं, सभा में आते हैं, विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। हालेलुया। When you come to church, when you listen the word, God will do bigger things in your life. मैंने हमेशा एक चीज अपने आप को बोली है कि आप जब वचन को पढ़ोगे I always told myself one thing, that when you read the scripture, तो आप हमेशा बढ़ोगे। you'll always progress forward. आप जब वचन को पढ़ोगे तो आप हमेशा बढ़ोगे। When you read the word, you'll always progress forward. आपका वचन किसी के और, आपका जो भरोसा है किसी और के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर हमेशा होना चाहिए। Your faith should be always rooted in the Lord and in no one else. आप जब तक वचनों में पक्के नहीं होते तब तक आपका ब्रेक थ्रू बहुत दूर है। Unless you are strong in the word, there is no breakthrough for you. आपका वचन में पक्का होना बहुत जरूरी है विश्वास में नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। You have to be rooted in the word to go to the next level of faith. क्योंकि पहला तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत आसान है। The second thing I'm going to tell you is very easy. The first thing I'm going to tell you is very easy. वो बहुत आसान है It's very easy. कि आप कैसे विश्वास में नेक्स्ट लेवल पे बढ़ सकते हैं। How you will progress to the next level in faith. क्योंकि खुदा बढ़ाना चाहता है, खुदा चाहता है कि हमारा उस पर भरोसा बढ़े। Because the Lord wants us to progress forward in faith. हम देखेंगे नीति वचन प्रोवर्ब्स 3 Let's look to the Proverbs chapter 3, वर्स 5 and 6। verses 5 and 6. मैं इसको हिंदी में जल्दी से पढ़ूंगा। तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू उससे अपनी सारी बातों में स्मरण रख और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. कितना सुंदर वचन है ये। What a beautiful verse it आप is. जब इसको पढ़ते हैं तो अब मैं जब पढ़ता हूँ, जितनी बार भी पढ़ता हूँ तो मेरे सच में स्पिरिट में एक अजीब एनर्जी आती है इस वचन को पढ़। Every time I read this, I feel energetic in my spirit. क्योंकि बाइबल कहती है ना तो बल से ना आत्मा से बल्कि मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। Bible says that not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. हालेलुया। जब Hallelujah. हम उसके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड रहते हैं When we are totally dependent on the Lord, तो वो हमारी सहायता करता है। he हालेलुया। will help us always. हमारे जीवन में रोज कई परेशानियां होती हैं, 24 घंटे रोज कुछ ना कुछ आता रहता है। There would be always some problem or other in our lives. पर परमेश्वर जब हमारे साथ खड़ा होता है हमारे जीवन में, When God is standing with us in our तो life, आप उन परेशानियों की वरी नहीं करते, you will not worry about those problems. क्योंकि आपको पता होता है इतने तूफानों से निकाला है। You know that God has already ये तो delivered you from ये so तो many कुछ भी नहीं storms. है। This is nothing. क्योंकि परमेश्वर पर आपका उस तरीके का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। You हालेलुया। have to have strong faith in God. जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होता है कि अपने मसल को कैसे बढ़ाना है। People who go to gym, they know how to make their muscles stronger. उनको पता है कि एक्सरसाइज करके मैं अपने मसल्स को कैसे बड़ा कर सकता हूँ। They know how to grow their muscles by exercising. आपको बाइबल पढ़ने के साथ साथ बाइबल जब आप पढ़ते हैं, बाइबल आप जब पढ़ते हैं When you read Bible, तो ये एक्सरसाइज है this is an exercise आपके विश्वास के मसल को बढ़ाने की।
to increase the muscle of your faith, आपके विश्वास के मसल को और बढ़ाने की। to increase the muscle of your faith. ये ऐसे इजी नहीं मिल जाता। पहले दिन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है वचन को। First you have to read. This is not going to be an easy process. जब but हम you पहले have to दिन read जिम first. जाते हैं, हम सीधा ही नहीं 100 किलो उठाने लग पड़ते हैं। When you go to gym, you don't lift 100 kilos. पहले हम once. पुशअप से स्टार्ट करते हैं, वार्म अप करते हैं। First you start with a warm up and then पाँच- push-ups. 5 किलो 10 किलो। Then you increase the weights gradually. उसी तरीके से बाइबल आप धीरे धीरे अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे वचन क्या कहता है। हालेलुया। Same way you have to read the Bible slowly and your understanding will grow periodically. क्योंकि आपके विश्वास को बढ़ने की जरूरत है परमेश्वर में। Because it's important to grow in faith in क्योंकि Jesus. हम बहुत सालों से परमेश्वर में अच्छे तरीके से चल रहे हैं। Because we are in the Lord for many years and we are walking well परमेश्वर हमें ब्लेस भी कर रहा है। and God is blessing us. पर व्हाट इज उसके बाद क्या? What's next? क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उतना ही है जैसे 8 साल पहले था? Is the anointing of the Holy Spirit same as 8 years ago? उससे नेक्स्ट बढ़ने की जरूरत है। We have to grow. उससे नेक्स्ट बढ़ने की जरूरत है। We have to grow to the next क्योंकि level. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों में बढ़ोतरी करें। Because God wants us to increase in our lives. हम नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे एक ही जगह पर बैठे रहें सारी उम्र। We don't want our children to stuck to one place all their lives. एक ही क्लास में बैठे रहें। They're stuck in same class all their life. कोई बरकत ना हो उनके जीवन में। No increase in their life. प्रभु भी ऐसा ही है। God is same way वो with us. चाहता है कि उसके बच्चे बढ़े He wants his children to grow. हर साइड से। Every area. ब्लेसिंग्स में, In the blessings, पवित्रताई में, in the holiness, विश्वास में। in faith. हमें पता होना चाहिए कि वर्स बाइबल की कौन सी वर्स कहाँ लिखी है। We have to know which scripture is written. क्योंकि जो विश्वास है वो बाइबल पढ़ने से आता है। हालेलुया। Bible says the faith comes from hearing. और वो सुनने से आता है। Faith comes from hearing. जो परमेश्वर है कई बार हमारे ड्रीम्स में, कई बार हमारे सपनों में आके हमसे बात करता है। Sometimes God speaks us to dreams and visions. आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा जोसेफ के बारे में। Many people have read about Joseph. जोसेफ की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो ड्रीम्स के साथ स्टार्ट होती है। ट्रबल स्टार्ट होता है ड्रीम के साथ। His life starts with dreams and the trouble started with dreams. जब वो अपना ड्रीम अपने पिता को बताता है, भाइयों के साथ शेयर करता है, तो क्या होता है उसके साथ? When he shared his dream with his dad and his brothers, उसको बेच दिया जाता है। he was sent out. अगर वो बिकता नहीं If he was not sold off, तो वो जो बड़ा प्लान परमेश्वर का था उसके जीवन में वो पूरा कभी नहीं होता। the big plans that God had for him would have been never successful. कई बार हमें अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। टाइम अपना सैक्रिफाइस करें बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना करने में। We have to sacrifice our time for God and to read Bible. कई जो हमारे ड्रीम्स हैं जो पूरे नहीं हुए, The dreams that are not fulfilled yet, वो परमेश्वर के पास अभी भी है। God has those dreams right वो even now. चाहता है कि वो आपके ड्रीम्स को पूरा करे। And he wants to fulfill your dreams. कहाँ पे लिखा हुआ है? Where is it written? वेरी फेमस वर्स, Very famous verse. जर्माया 29:11। Jeremiah 29:11. क्या लिखा है वहाँ पे? I have the plans for you, plans to prosper you, not to harm you, Plans to give you hope and future. plans to give you hope and future. Amen. हम हिंदी में पढ़ेंगे कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की हैं उन्हें मैं भली भांति जानता हूँ। वह हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, कई plans जो to पर- give you hope and future. कई जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान्स रखे थे, Many प्लान्स जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखे थे, times the plans God has for us, वो जो पूरे ना हो सके, they were not fulfilled. वो भी प्लान आप पूरे करा सकते हैं परमेश्वर से जब आप दोबारा कहना शुरू करेंगे। Those plans can come to pass when you start asking God. उससे जब कहेंगे परमेश्वर तू मेरी मदद कर, जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मेरी इच्छाएं थी, उनको तू पूरा कर। You have to say to God, God fulfill my dreams. और परमेश्वर आपके ड्रीम्स को पूरा करेगा। And हालेलुया। God will fulfill your dreams. और वो आपकी कल्पनाएं जो आपकी सोच से परे हैं, उनको आपके जीवन में पूरा करेगा। And beyond your imagination, God will bring it to pass. मत्ती 17:20 में हम देखते हैं, Matthew 17. यदि तेरा विश्वास और यदि तेरी विश्वास हो तू सब कुछ कर सकता है। इस लाइन को ध्यान से सुने। यदि तेरा विश्वास हो तो तू सब कुछ कर सकता है। विश्वास किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। यदि तेरे विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो तो तू इस पहाड़ से कहता है कि समुद्र में गिर जा, वो गिर जाएगा। Anyone, which one? Sorry. 17:20।
हालेलुया। For he replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. क्योंकि हम जो बाइबल कहती है कि राई के दाने के जितना, राई का जो दाना होता है इससे भी बहुत छोटा होता है। The mustard seed is very, very small. आप उतना भी विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम कर सकता है। The more you trust God, the bigger the God's work will be in your life. पर हमें राई के दाने से बढ़ने की जरूरत है, ज्यादा होने की जरूरत है। And we have to grow beyond the faith of a mustard seed. राई के दाने पे स्टिक होने की जरूरत नहीं, We don't have to stick to the faith of a उससे mustard बड़ा seed. सोचने की जरूरत है परमेश्वर के, We have to think bigger than that. क्योंकि परमेश्वर के जो प्लान्स हैं हमारे जीवनों के लिए बहुत बड़े हैं। हालेलुया। Because the plans God have for us are bigger. यिर्मयाह में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए लिखी हैं वो बहुत बड़ी हैं। हालेलुया। Because God says that the plans I have for you are greater. 12 साल पहले जब परमेश्वर ने ये विजन, परमेश्वर ने ये ड्रीम, विजन मुझे दिया इस चर्च के लिए, 12 years ago, the vision that God has given to me for this church, इसको जब हमने स्टार्ट पिछले साल किया 2024 में, we started it last year. बहुत मुश्किल होता है कई बार सुबह बच्चों को रेडी करना, उठाना और चर्च में लेके आना, सामान सेट करना बड़ा मुश्किल लगता है। It is very difficult to bring the equipment, set it up, wake up children in the morning. पर हमें विश्वास है कि परमेश्वर इस चर्च को बढ़ाएगा, And we put faith that the God is going to grow this church. क्योंकि उसके जो प्लान्स हैं हमारे सोचने से परे हैं। And because his plans are bigger than our thoughts. जैसे मैंने पहले कहा, अगर जोसेफ बेचा ना गया होता तो कभी वो प्लान उसके जीवन में पूरा नहीं होता। As I said earlier, if Joseph was not sold off, the plans of God will never fulfill it. कई बार हमें सेक्रीफाइस करने की जरूरत होती है, अपनी चीजों को, अपने टाइम को, अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को। Sometimes we should sacrifice the things that we need to do for God. जब हम अपने पुराने चर्च में थे, When we were in our old church, हमारा पास्टर के साथ आज भी प्यार है, we loved the pastor very much. सब कुछ सेट होता था। Everything was set. जाओ, गिटार पकड़ो, वर्शिप लीड करो, 1 घंटे 1.5 घंटे मजे में आगे घर सेटल। We used to go because everything was set and pick up the guitar, ready guitar, lead the worship for 1 hour and come back home. जब ये प्लान हमारे जीवन में परमेश्वर ने डाला कि हमने चर्च स्टार्ट करना है 2024 में, When God has opened the plan for starting a church in 2024, तो जब उसने वो दरवाजा बंद किया, when He closed the previous कई door, चीजें बंद की हमारे जीवन में, many things were closed in our बड़ा life. हर्ट होता था कि यार क्या चाहता है परमेश्वर हमसे, It used to hurt us so much that what God wants us in our lives. क्योंकि उसने जो हमारे लिए प्लान रखा है, एक बड़ा प्लान रखा है, God इसलिए has- उसने इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। God has bigger plans for us, and that's why He started this ministry. क्योंकि first. हम परमेश्वर की तरह नहीं सोच सकते, आपको ये मानना होगा, जानना होगा, आप परमेश्वर की तरह नहीं सोच सकते। No matter what, you cannot think big like God. एक जो इंसान है जिसको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, The person who doesn't know anything about अगर वो business, बिजनेस स्टार्ट कर दे, क्या होगा उसके साथ कल? what, फेल होगा। a person who does not know anything about business starts a business, what will happen to him पर tomorrow? वो सेम पर्सन अगर अच्छे तरीके से परमेश्वर की अगुवाई की द्वारा वो बिजनेस स्टार्ट करे तो वो हमेशा प्रॉस्पर होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, आज मैं कल ही पास्टर क्रिस्टीना को आज सुबह बता रहा था, गधा पहलवान, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अगर खुदा मेहरबान होता है आपके ऊपर तो आप पहलवान बनते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जो प्लान है हमारे जीवन में बहुत बड़े हैं और हमें उनको जानने की जरूरत है। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला, जब जोसेफ जेल में था तो उसने ड्रीम को जब राजा को बताया तो उसको जेल से निकालकर सीधा बड़ी पदवी दे दी गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, मैंने जो प्लान रखे हुए हैं इसके जीवन के लिए वो बहुत बड़े हैं। उसके जीवन में कठिनाइयाँ आने के बाद भी परमेश्वर उसको ब्लेस करता रहा। हालेलुया। उसके जीवन में ऐसी जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, ऐसी चीज़ें हुई जो परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में वैसी चीज़ें हो तो हम में भी छोड़ जाएंगे। हम कहेंगे अरे यार क्या है, थोड़ी सी कठिनाई आती है हमारे जीवन में, लगता है परमेश्वर मेरे साथ ही नहीं है, मुझे नहीं लगता परमेश्वर मेरे साथ है। पर वो जो टाइम होता है टेस्ट का, उसी में हमको फेथफुल रहना है। हालेलुया। उसी में हमको खड़े रहना है और परमेश्वर के साथ चलते रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। इस मसीही जीवन में जब हम परमेश्वर को जानते हैं और हमें रास्ते पता है कि परमेश्वर आपको ब्लेस कैसे करेगा, हमें पता है कि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन में उद्धार लेके आता है, हमें पता है किन वर्सेस के साथ हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग मिल सकती है, हमें पता है कि कैसे हम उसमें बढ़ सकते हैं, तो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। मेरी इच्छा ये है कि आप सब लोग नेक्स्ट लेवल पे मूव हों,
नेक्स्ट लेवल पे चलें, नेक्स्ट लेवल पे जो परमेश्वर ने आशीष और बरकतें आपके जीवन में रखी हुई हैं वो आपको दे। जैसे मैंने पहले भी कहा, कई बार हम खुद दोनों कई बार ऐसे इतने बुरे मूड में होते हैं कि परमेश्वर क्या तेरा सच में यही प्लान है कि हम चर्च में रहें, ऐसे स्टार्ट करें? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि हम चारों ही चर्च में बैठे हुए हैं। Sometimes we go through difficult situations where we think very bad moods. We think, God, is this really your will? Because only we four are sitting in the church. और फिर से कंफर्मेशन आती है किसी प्रॉफिट के द्वारा, And then we get another confirmation from another और वो prophet. प्रॉफिट हमें जानता भी नहीं होता, वो कहीं श्रीलंका में बैठा है, किसी और को बोलता है कि पॉल एंड क्रिस्टीना सो एंड सो पर्सन ही इज रिलेटेड टू, तुम लोगों के साथ वो रिलेटेड है। And the prophet was from Sri Lanka, who has no connection with anything we are doing or to the people we know. He said that there is Paul and Christina who is related to you. उनको फोन करके बोलो कि परमेश्वर चाहता है कि कंटिन्यू करो। And call them and tell them that the Lord wants to continue this अभी ministry. रिसेंटली लास्ट वीक और प्रॉफिट एक ने बोला कि ये मिनिस्ट्री बढ़ेगी, बने रहो और खड़े रहो। And last week also prophet came and said that this ministry would grow, just stand firm. जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं, वचन में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर जरूर आंसर देता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं और परमेश्वर आपकी मदद जरूर करता है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रतिफल वही मिलता है जहां विश्वास है, प्रतिफल वही मिलता है जहां विश्वास होता है। You will get to see the fruits only where there is faith. यदि आप प्रतिफल चाहते हो तो आपको विश्वास करने की जरूरत है, और वचन को पढ़ने की जरूरत है, और वचन को सुनने की जरूरत है। हालेलुया। यदि अगर आप प्रतिफल चाहते हो अपने जीवन में, तो आपको परमेश्वर के साथ हर दिन चलने की जरूरत है। If you want to see your breakthroughs in your life, you have to walk with God every moment of your life. जो चर्च का पादरी है, पास्टर है, वो आपके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको वचन में से बता सकता है, पर जो रेस्ट ऑफ जो बाकी काम है वो आपको खुद करना है। हालेलुया। The pastor of a church can only pray for you, teach you word and guide you, but you have to do everything required to increase in faith. क्योंकि बाइबल कहती है हमारा जो भरोसा है वो घोड़ों और रथों पर नहीं होना चाहिए, Bible says that we should not trust in the horses or chariots, पर हमारा भरोसा जीवित खुदावंत पर होना चाहिए। but we have to हालेलुया। trust in the living God. और जब आप विश्वास करते हो तो उसमें डाउट ना रखें, संदेह ना करें, क्योंकि विश्वास जो है संदेह में पॉइजन का काम, जो संदेह है जो विश्वास में पॉइजन का काम करता है। जब थोड़ा सा भी आपको डाउट आता है ना, तो खत्म, क्योंकि आप परमेश्वर पे डाउट कर रहे हैं, आप परमेश्वर पे संदेह कर रहे हैं। जब विश्वास करते हैं तो आप कहें रोज अपने आप को, ये चीज मेरे जीवन में जरूर पूरी होगी। हालेलुया। और आपने अपने जीवन में वो चीज एक्सपीरियंस की, आपने टेस्टमनी देखी, अपने जीवन से निकलती हुई। जब आप पूरे तरीके से परमेश्वर पे छोड़ देते हैं, परमेश्वर तू ही है जो करने वाला है। हालेलुया। When we surrender everything to God's hand and say that God, only you can do it, God will do it. क्योंकि वो हमारे रास्तों को जानता है, He knows our paths. वो हमारे दिमाग को जानता है, जिसने हमारे दिमाग को रचा है वो हमारे दिमाग को जानता है, The one who has designed our mind knows our mind. जिसने हमारे शरीर को रचा है वो हमारे शरीर को जानता है, The one who has designed our lives knows our lives. क्योंकि वो एक प्यार करने वाला परमेश्वर He is है। a loving God. वो चाहता है कि हम उसमें बढ़े। He हालेलुया। wants us to grow in Him. इस करके मेरी ये प्रार्थना है कि आप उसमें बढ़े, That's why this is my prayer that you increase in your आप faith. उसमें बढ़ते रहें। You हालेलुया। increase in your faith. उस औरत की तरह जिसको सब कुछ सब लोगों ने ठुकरा दिया था, Just like the lady who was rejected by और everyone. 12 साल से वो बीमार थी। And she was sick for 12 years. कितने लोगों के पास वो गई, डॉक्टर्स के पास गई, हीलिंग के लिए अपना सारा पैसा खो दिया, She has spent all her money for going to doctors just to get healed. और जब उसने परमेश्वर के यीशु मसीह के बारे में सुना था, उसका विश्वास अंदर से जागा कि एक बार मैं उसका पल्ला जो है मैं एक बार छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। She heard about Jesus and she said, only if I can touch him once, I will be healed. क्या कितना बड़ा विश्वास होगा कि एक औरत सोच रही है कि जस्ट उसका मैं पल्ला ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। It's a big thing that a woman can think that only if I can touch his corner of his cloth, then I will be healed. परमेश्वर जो है बड़ा परमेश्वर है, वो हमें जानता है, उससे बात करें हमेशा।
God is a big God, and all He wants us is to talk to Him. हर एक तूफान में उसके साथ बात करते रहे, In every circumstance, just talk to the Lord. हर एक हालात में उसके साथ बात करते रहे। In every circumstance, just talk to the Lord. जैसे आपको पता है वो हालात बदलने वाला परमेश्वर है, Because you know that He is a transforming वो God. जीवन बदलने वाला परमेश्वर He है। is a life transforming वो God. हमारा पैसा नहीं चाहता, वो हमारी ब्लेसिंग्स नहीं चाहता, वो हमारी बिल्डिंग घर कारें नहीं चाहता। He doesn't need anything from us. वो चाहता है कि हम उसकी हजूरी में रहें, उसके साथ बने रहें All He needs is that we stay in His और presence. सच्चाई के साथ उसके साथ चलते रहें, And in truth we walk with Him. सच्चाई के साथ उसके साथ चलते रहें, And in truth we walk with Him. विश्वास के साथ उसके साथ चलते रहें। And in faith we walk with Him. हमेशा याद रखें कि विश्वास में बढ़े। And always remember to grow in faith. उन चीज़ों को जिन चीज़ों को आपने छोड़ दिया था कि ये चीज़ें नहीं होंगी मेरे जीवन में, उन चीज़ों के लिए दोबारा प्रार्थना करनी शुरू करें। And the things that you left, stop praying for. You have to start praying by faith. आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े काम करेगा। And you हालेलुया। will see that Lord will do great things in आप your life. देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में वो चीज़ें